So, hi Ashish, just for the recording thing, Yeah, we sure. just started the call. You've told me your name is Ashish Thaya at the Ahmedabad location, Yeah, OEM business, 3 years and 8 months. And what is your right. designation, Ashish? My designation is Key Accounts Manager. Yeah. Who is your reporting manager? My reporting manager is Mr. Sandeep Gambhir. Sandeep Gambhir. What is your project title? My project title is basically generating business from MGP business. What is MGP business? Maruti Genuine Parts Channel Network. You can say generating business from MGP network, Maruti Genuine Parts Network. अभी कितना बिजनेस हो रहा है इनके साथ? So frankly speaking, अभी कोई business नहीं हो रहा है. Who are your key stakeholders in this project? Key stakeholders will be my team members, Mr. Ajay Singh and Abdul Sheikh. Anybody from Maruti? No one, like they are not very cooperative. Okay. I may take help, but they are not far away. They are not can be called as a stakeholders at all. And name any person from that place, Maruti. Pardon? Anybody from Maruti that you are in touch with? I am in touch with Mr. Vivek Goel. So would it be right that Mr. Vivek Goyal from MGP is MGA. MGA is hostile towards your project? Not hostile, sir. Actually, they are not hostile, but they are Indifferent. not indifferent. Yes, they doesn't care because they Okay. have they are. In stakeholder category, there is one stakeholder category is this also. Indifferent, which is 1 degree lesser than the worst, which is hostile. Yeah, frankly speaking, if we are able to generate business for them, they will be happy enough, but they will not be in a contributing nature at all. I got it. They would not be supportive. So They will now, not be. They will not be opposing. They will not be opposing as well. Okay. So now, can you tell me about your project? What is your project? Right. My project, first of all, to understand my business, first of all, I will have to make you understand what my actual current business is where I'm working right now. I am working with OEM business of Nippon Paints, and in this business, we have got an exclusive approval with Maruti. Okay. Yeah, since you're typing, I'm going slow. In this business, we have got an exclusive approval with Maruti Suzuki India, Maruti Suzuki India, where we supply automotive refinished products to the Maruti dealers across India. ऑटोमोटिव इसका ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ऑटोमोटिव रीफिनिश. ऑटोमोटिव रीफिनिश प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पेंट्स होते हैं ये? नहीं सर, रीफिनिश का मतलब है बेसिकली जब पेंट हो जाता है तो पेंट होने के बाद में जो फिनिशिंग चाहिए पेंट को, लाइक वंस द पेंट प्रोसेस इज डन ऑन द पैनल, on an extrusion panel, then it needs to be polished such that it matches with the new looks like a new panel and glossy panel. It needs to be polished and that's why that is a refinish, because we are refinishing it, so it is a refinished product. अब इसमें आप क्या कर रहे हो? What is that thing that you are doing in your project? हाँ, जैसे मैं बता रहा था पहले, मैं आपको अपना जो करंट बिजनेस बता रहा हूँ. हम लोग का जो एक्सक्लूसिव अप्रूवल है, मारुति ने हमको अप्रूव करके रखा है, एंड वी आर सप्लाइंग दिस Maruti branded product to the Maruti dealers across India, as we have an approval from Maruti to supply to those dealers. Maruti has got two kind of networks. One network is their automotive. एक मिनट. Maruti Nippon is supplying Maruti branded refinishing products to the Maruti dealers. Maruti branded refinishing products to Maruti dealers. ठीक है. Yes. Now this has been our predominant business from last 7-8 years. Maruti has got two kind of networks.
One is their car dealer network, where we are present right now, and we are doing as an all India, we are doing a good number, but as an my region also, we are doing around 1 CR of business per month. Maruti has got one more spare part dealer network. Okay. This spare part dealer network caters to the Maruti dealers are directly catered by the Maruti Suzuki, but the unauthorized garages which are there in our, like in our colonies, our societies, we can see lots of uh, private garages. Though they also use lot of Maruti products and Maruti spare parts and Maruti branded products. To supply them, Maruti has opened a new network called spare parts distributor network. So that's a huge network which is present all over India, and we are not working with them till now. Okay. Because these spare part dealer caters to the another I will not say unauthorized private garages network across their regions. Every big town has got one spare part dealer, and they have their own 400 मैं 500 समझ private गया, garages. B2C टाइप का काम हो गया उनका। हाँ, तो इस सेगमेंट को हम लोग अभी तक कैटर नहीं कर रहे हैं, एंड आई हैव टेकन अ प्रोजेक्ट टू सप्लाई आवर प्रोडक्ट थ्रू दिस मारुति स्पेयर पार्ट नेटवर्क टू द प्राइवेट गैरेजेस. So that automotive refinish products, right? Yes. Reach private garages. Yes. Okay, now tell me one thing. How Yes. many products are there in this? In our business, we have got 14 products, 14 SKUs, which are approved by Maruti. Because in Maruti dealer and Maruti spare part network, only 14 SKUs which have been approved by them, and we'll be working on that 14 products, 14 SKUs. Okay. Now, how many spare part dealers are there in your So what is the geography that you will be covering? For my project, my current territory is I will be catering to my existing territory as a key accounts manager. That is Western region, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Goa, and MP. Existing territory क्या है? Rajasthan, Gujarat, Goa, Gujarat, MP, and Maharashtra. Okay. And any other territory? No. As of now, for the project work, it's for my territory. This is my How current many- territory as well. How many Maruti spare part dealers are there in this territory? There are total 19 dealers or distributors. They are basically distributors. 19 distributors. You can call them dealers or distributors either, because they are. Okay, I got it. 19 dealers are there. Yes. तो अब हम जब फनल छोटा करते जा रहे हैं, तो अब हमारा ये ऑडियंस है जिन पे हमें ये पार्ट्स बेचने हैं. बिल्कुल. क्या ये पार्ट्स इनके पास ऑलरेडी हैं? नहीं होते. नहीं, तो आपने बताया कि मारुति 2 चैनल से बेच रही है. एक तो ये था जो आपने मुझे पहले बताया, दूसरा ये वाला बताया स्पेयर पार्ट. पहला था कार डीलर नेटवर्क. दूसरा चैनल है स्पेयर पार्ट डीलर नेटवर्क. मारुति अभी यहाँ कैसे बेच रही है? देखिए सर, मारुति का जो मॉडल वर्किंग लाइक मॉडल्स ऑपरेंडी है, मारुति निपॉन से प्रोडक्ट खरीदता है, मारुति स्टॉक करता है, और मारुति ही अपने कार डीलर्स एज वेल एज स्पेयर पार्ट डीलर को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है. आई डोंट सेल डायरेक्टली. आई जस्ट कलेक्ट द ऑर्डर्स, द डीलर ऑर्डर्स टू द मारुति, एंड मारुति बायज इन टर्न फ्रॉम निपॉन. दैट इज हाउ द एंटायर नेटवर्क वर्क्स. 1 सेकेंड. तो ये 19 डीलर जो हैं, हाँ जी, ये मारुति को ऑर्डर करते हैं. ऑर्डर टू मारुति, गिव देयर ऑर्डर टू मारुति, राइट? यस.
give their order to Maruti of automotive refinish products. यस, अभी करते नहीं है, लाइक अगर वो करेंगे तो दिस इज ऐसे ही करेंगे। तो ये नया चैनल है स्पेयर पार्ट डीलर नेटवर्क। मारुति के लिए नया नहीं है, हम लोग उसके अंदर नया, हम लोग उस, हमारे लिए वो वैकेंट टेरिटरी है जहाँ पे हम लोग एंटर करना चाहते हैं। दोबारा समझाओ, नहीं समझ आया मेरे को ये, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया। हाँ। देखिए सर, मारुति का स्पेयर पार्ट नेटवर्क नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। मारुति के दो नेटवर्क है, एक कार सेल्स नेटवर्क और एक है स्पेयर पार्ट नेटवर्क। जो ठीक है। कार सेल्स, जो कार का डीलर होता है उसके पास कार सेलिंग प्लस कार सर्विसिंग दोनों उसके पास में होता है। नहीं वो तो मैं वो समझ गया, नेटवर्क, स्पेयर उस पार्ट नेटवर्क में डीलर्स हम, के पास और भी बहुत कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, दे आर एक्सक्लूसिव मारुति स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनके पास मारुति के प्रोडक्ट्स हैं। मारुति has got सर थाउजेंड्स ऑफ एसकेयूज। मारुति के पास में थाउजेंड्स हाँ। ऑफ एसकेयूज है। उसके पास में आपका लुब्रिकेंट से लेके स्पेयर पार्ट्स, जो मैकेनिकल स्पेयर पार्ट, बम्पर, नहीं लाइक ये मैं समझ गया, तो वहां निप्पॉन के जब प्रोडक्ट्स जाएंगे तो वो ब्रांडेड बाय मारुति होंगे। हाँ, वो मारुति, बिकॉज जो जो नेटवर्क वही रहेगा सर। जो मारुति का स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, ही इज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मारुति। ही विल बाय फ्रॉम मारुति, मारुति विल बाय फ्रॉम अस। मारुति जो बाय करता है ना मुझसे, सपोज 1000 बॉटल ऑफ G3 लिक्विड जो मारुति मुझसे खरीदता है, वही वो डीलर को देगा, उसी स्टॉक में से वो स्पेयर पार्ट नेटवर्क को भी देगा। मारुति इज द कॉमन प्रिंसिपल फॉर बोथ द डीलर्स एज वेल एज स्पेयर पार्ट डीलर। कार डीलर एज स्पेयर पार्ट डीलर दोनों का प्रिंसिपल मारुति है। अब ये मारुति निप्पॉन से लेके उस पे अपनी ब्रांडिंग कर देगा, एम आई राइट? मारुति निप्पॉन को बोलता है मेरा ब्रांडिंग करके आप मुझे दो, मैं आगे बेचूंगा। वी अच्छा, तो वी निप्पॉन ही ब्रांडिंग करके देगा। every vendor does the same, whether it is lubricants, whether it is us, हम लोग ही है मारुति का ब्रांडिंग करके हम लोग उनको तो देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 19 डीलर अभी मारुति को अपने ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ, वो देते हैं, वो दैट नेटवर्क ऑफ स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट्स नहीं, अ तो सक्सेसफुल अच्छा, चैनल। अब दो चीजें हैं, ये तो मारुति के नेटवर्क जो 19 डीलर्स हैं, एक तो ये मारुति को ऑर्डर देते हैं नॉन निप्पॉन पेंट प्रोडक्ट्स का, ठीक है, क्या निप्पॉन का भी दे रहे हैं? निपॉन का नहीं देते सर। क्यों देखिए नहीं अभी दे हम रहे अभी लोग तक, जब, क्यों नहीं दे रहे अभी तक? क्योंकि हमने उसको आज तक, हमने उस चैनल को हमने एक्सप्लोर नहीं किया है सर। अभी इसके ओके। अंदर हम निपॉन ओके, को फॉर वन फॉर सेकेंड, टाइम वन बिंग, सेकेंड, हाँ, वन सेकेंड। 19 डीलर्स do not give order for Nippon products. सर देखिए, एक बार जब वो मारुति के स्टॉक में जब 10,000 एसकेयू चले गए, उसके अंदर आपका ब्रेक पैड भी हो गया, लुब्रिकेंट्स भी हो गया, आपका डोर पैनल भी हो गया, आपका मॉडरेट भी हो गया, आपके टायर्स भी हो गए, आपके रिम्स भी हो गए। वंस हाँ। इट इज मारुति ब्रांडेड, वो मारुति का प्रोडक्ट हो गया। तो हम लोग अच्छा। अभी फॉर वंस हम लोग जब मारुति डीलर नेटवर्क और मारुति स्पेयर पार्ट नेटवर्क पे आ गए, हम लोग के लिए वो अब निपॉन है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको तो एक्स्ट्रा ब्रांड मारुति ब्रांडेड प्रोडक्ट आ रहा है। ही हैज गॉट 10,000 SKUs which are supplied by 500 vendors to the Maruti। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि आपके ये 14 प्रोडक्ट चले भी गए तो हाँ जी, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके तो समुंदर में दो बूंदे और ऐड हो गई मारुति उनको का ठप्पा लगा के, मैं समझ गया। हाँ तो अब मुझे ये बताइए कि 19 हैं डीलर्स जहां पे आपने प्रमोशंस करनी, हाँ जी। अब इन डीलर पे परचेज कैसे होती है? क्या कस्टमर यहाँ आता है, टेलीफोनिक ऑर्डर करता है, क्या होता है? जो ये स्पेयर पार्ट डीलर का जो है उनका, हाँ हाँ हाँ। देखिए नॉर्मली जैसे अब मैंने आपको 5 स्टेट बताए, ठीक है। आई विल बी गेटिंग टू राजस्थान, गोवा, गुजरात, MP एंड महाराष्ट्र। इन 5 स्टेट में आप नोटिस करेंगे देयर आर ओनली 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स। 19 डिस्ट्रीब्यूटर मतलब 4 डिस्ट्रीब्यूटर की एवरेज के हिसाब से है, ठीक है। तो लाइक ऑल द मेजर सिटीज, हाँ, ऑल द मेजर चले, सिटीज। जितने मेजर सिटी है वहीं पे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, ठीक है। लाइक गुजरात में अहमदाबाद में एक है, राजकोट में एक है, बड़ौदा में एक है, सूरत में एक है। बट जो अहमदाबाद का डिस्ट्रीब्यूटर है, ही दैट डिस्ट्रीब्यूटर इज कैटरिंग टू द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पालनपुर, साबरकाठा, हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर, बोटाद, वो सब कैटर करता है। ही हैज गॉट टू काइंड ऑफ नेटवर्क। दे हैव गॉट देयर ओन रिटेल शॉप, एंड distribution network as well, where their own, uh, distributors are present.
अच्छा, दे हैव गॉट वॉक इन कस्टमर्स इन दोस रिटेल शॉप्स एंड दे सप्लाई द मटेरियल एज वेल। दोनों काम करते हैं वो लोग। And they supply also. ठीक है ना? जी दे सप्लाई ऑल्सो। अब ये मुझे समझ आ गया भाई। तो इन 19 डीलर्स की डिटेल्स हैं आपके पास? जी, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। एक तो ये मुझे चाहिए होंगी, आई वुड लाइक टू सी दैट। ठीक है अब आप क्या टारगेट कर रहे हो? आपने कितने की सेल करनी है? INR 1 लाख की कितने की सेल करनी है? सर, देखिए अभी जो इनिशियल मैंने प्रोजेक्ट के लिए लिया है, प्रोजेक्ट के लिए हमने एक बहुत अभी बेसिक लिया है, बिकॉज क्योंकि अभी क्या है, देखिए इस नेटवर्क में अभी तक बहुत ज्यादा हम लोग ने इसमें वेंचर नहीं किया है। अभी सिर्फ एक नहीं एक नहीं, अभी आपकी टारगेट सेल्स कितनी है? जो प्रोजेक्ट सर, का ही अमाउंट बता दो, जो प्रोजेक्ट में करनी है। सर 9 से 10 लाख रुपए पर मंथ का भी प्रोजेक्ट लिया है फॉर द प्रोजेक्ट के पर्पस तक। बट फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट वर्क बिजनेस है दैट कैन बी स्केल अप टू द सिमिलर वैल्यू ऑफ आवर करंट डीलरशिप नेटवर्क का जो बिजनेस है, सेम उसी लेवल पे जा सकता है 50 लाख का आप बोल रहे हो? आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। टारगेट सर, सेल्स। आपको आपको जस्ट सर उस मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। टुडे आई वेंट टू द जयपुर आशीष, का। आशीष, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम सर 43। प्लीज कॉल मी विकास, डोंट कॉल मी सर। श्योर ऐसा लग विकास। रहा है जैसे मैं कॉलेज में पहुंच गया हूँ। मैं वैसे ही प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, लग ठीक रहा है है। कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं, कॉलेज में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इट्स फाइन विकास। लाइक आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। टुडे हाँ, आई वेंट टू जयपुर स्पेयर पार्ट डीलर इंडिया ऑटोमोटिव्स। ओके। They have got around 7 to 8 branches in Rajasthan, and in and all, they have got 7,000 garages they are catering to from their branches, from one distributor. Now, like the potential is very huge, but it will take some time because normally, जो वन refinishing the सेक product, वन सेक वन सेक वन सेक। yeah, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीलर? this is India Automotive. इंडिया। और मैंने मतलब इससे मेरा कुछ दिमाग में बहुत सारे नंबर्स आए। इंडिया ऑटोमोटिव की 7 ब्रांचेस हैं। हाँ जी। एंड दे केटर टू हाउ मेनी डीलर, हाउ मेनी वर्कशॉप्स? Their total database is of around 7 to 8 thousand garages, and their active customers who buys every month is around 4,000. ओ तो But that's an 4,000। huge, मतलब वो पर वो that is spread between 8 to 10 districts, जयपुर, गंगानगर, अजमेर एंड ऑल, मतलब बहुत 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में पूरा स्प्रेड है वो। एंड नहीं, लाइक सिमिलर थिंग। मैं इसको पोटेंशियल के लिए देख रहा हूँ। हाँ जी। 400 एक्टिव कस्टमर्स बाइंग रेगुलरली। यस अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसी सैंपल में कितने हाँ जी। परसेंट कस्टमर्स ऐसे होंगे जो आपके ये रीफिनिश प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव रीफिनिश प्रोडक्ट्स ले रहे हैं? इन 4,000 में से कितने परसेंटेज कस्टमर्स होंगे? सर देखिए, अभी हमारा तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, हमारे लिए तो जीरो है वो, नहीं, बिकॉज बट वो कंपटीशन के ऑटोमोटिव रीफिनिश प्रोडक्ट्स कितने लोग ले रहे हैं? सर इन 4,000 का जो मेरा एस्टिमेट है कि जो ये 4,000 गैरेजेस जो उन्होंने बताया मुझे कि इतने हमारे एक्टिव कस्टमर हैं, ये सारे के सारे कस्टमर जो होंगे, जो गैरेजेस वाले होंगे, सारे के सारे पेंटिंग और डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं करते होंगे। उसमें से अराउंड 25% ही होंगे जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते होंगे, रेस्ट ऑल विल बी मोस्टली ऑफ ओनली मैकेनिकल वर्क। तो जो आई गॉट पच्चीस इट। तीस सो फाइन, 25-30% पे आ गए। क्या वो हाँ सब जी लेते हैं? सर, जो जो भी कार डेंटिंग या पेंटिंग करेगा, वो मार्केट में से किसी न किसी का रिफिनिशिंग प्रोडक्ट लेगा। ओके, 1 सेकेंड। 25%। अब आप मुझे ये बात दो, 19 डीलर जो है इनकी कितनी ब्रांचेस हैं मिला के? सर जो मेरा अभी मैं सब जगह नहीं जा पाया हूँ मैं अभी, बिकॉज अभी भी स्टार्ट किया हम लोगों ने। जयपुर वाले का 7 ब्रांच है, अहमदाबाद वाले की 6-7 ब्रांच है, राजकोट वाले की 3 ब्रांच है, बड़ौदा वाले की 3-4 ब्रांच है। तो 4 to 5 ब्रांचेस अप्रोक्सीमेटली हम लोग पकड़ के चल सकते हैं, एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो हम पूना वाले 100 के ब्रांच, पास, हम 100 ब्रांचेस मान लें। हाँ 19 हम लोग रफली इतना पकड़ सकते हैं मिनिमम। और हर ब्रांच के कितने कस्टमर्स होंगे? कितने गैराजेस होंगे जिनको ये एक्टिवली सप्लाई कर रहे होंगे?
जैसे अभी छोटी भी जगह है, जैसे आज मैं गया था, एक छोटे टाउन गया था, चोमू करके, एकदम छोटा टाउन है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल टाउन, उसके आई नो, पास में आई स्टार्टेड माई करियर विद राजस्थान। मैं पूरे राजस्थान में दारू बेचता था कभी एक टाइम पे। बकाडी का मैं सेल्स हेड था, वाह गुड, राजस्थान का सेल्स हेड एंड सेल्स प्रमोशन हेड। तो राइट राइट, चूरू, चोमू चोमू, आपका डोसा, हाँ, सांबर, यस यस, तो यू उदयपुर, हैव विजिटेड जोधपुर। एक्सपेंसिवली। या भैया, दारू राजस्थान में तो बेचनी पड़ती थी। सिरोही से हम वहां स्मगल करते थे अहमदाबाद, जिसको बहुत आता दारू है में स्टॉक बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं? से। एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट सेल्स। तो वो पेटियां भी रखवानी होती थी। आई बीन थ्रू दैट ड्रिल, यू नो, like, but that drill was right in the very beginning years of my life, and then I moved on to financial sales, and then I moved on to software and hardware sales. So uh, my background is, I've shared it during the training, I'll just reshare with you. So I started my career as a medical representative with ओके, Central Delhi as my territory, and then I went to do my MBA, and then I did my first job in credit management, risk management, fraud detection with G Capital. राइट, Came back to sales with Franklin Templeton as their AVP for South region. I was, कौन सा I was म्यूचुअल फंड बिजनेस? no Franklin Templeton. या दे It's हैव a गॉट म्यूचुअल mutual फंड fund. Yeah, बिजनेस, it's a mutual राइट, fund. Yeah, that's right. So my job was to take care of everything, starting from sales to customer care to operations for 5 states: Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Cochin, um, uh, लाइक केरला, केरला, तमिलनाडु, केरला। एपी में भी हाँ, है, नहीं, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र आंध्र प्रदेश हो प्रदेश हो गया, गया, कर्नाटका। और कर्नाटका हो गया, और एक और जगह थी, मुझे नहीं याद आ रहा क्या था। जी, तो वहां पे यही सारा काम था। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सो आई एम कीन टू नो, ये जो 19 डीलर हैं, हाँ जी, इनके हमने लगा लिया कि 100 ब्रांचेस होंगे। हाँ इन जी। 100 ब्रांचेस के एक्टिव कस्टमर्स कितने होंगे? सर देखिए, एक्टिव कस्टमर्स डिपेंड करेगा, जैसे मैं आज चोमू वाले ब्रांच पे गया था, वहां से मैंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया है ये वाला, तो उसके पास में एक्टिव कस्टमर 60-70 है, एक्टिव कस्टमर, बट चोमू इज अ स्मॉल ब्रांच। अब उसी इंडिया ऑटोमोटिव का जो जयपुर में, दे हैव गॉट 5 ब्रांचेस, उनके पास उनका चलो, बड़ा नेटवर्क होगा। तो एवरेज बताए। गंगानगर तो 80-100 पकड़ सकते हैं हम लोग। आप एक काम हाँ जी, करो, हाँ जी। मुझे हर डीलर का, I हम्म, want approximate garages एक्टिव covered. कस्टमर्स। हाँ, garages covered by each dealer. राइट, इससे ओके, ये हम आने वाले टाइम में अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल गेस्टिमेट में करने वाले हैं, जी जी, which is going to be at 2 weeks after this week. ओके। So I want you to do this approximation, ताकि हमें ये पता चले कि भाई हमारे ये 20,000 कस्टमर्स हैं जो हम टैप कर सकते हैं, जिसमें से 5,000 लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोडक्ट्स की हमारी जरूरत होगी। जी तो अच्छा, अब ये हमें समझ गया, यहाँ तक ये डेटा आपने मुझे देना है जो मैंने आपसे मांगा है। जी, मैं ठीक लिख है, लिया मैंने। इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल यू विल से recap of one-on-one. You will send या, it across to me, and you'll say this is the data that I'm supposed to send to you. राइट। Now, what is your strategy? 19 डीलर है, how do you plan to पटाओ them that they sell your product? अच्छा सर, इसके अंदर एक अच्छा, who is your competition? मैं बोलना भूल गया हूँ, who is your competition? एज सच देयर इज नो कंपटीशन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, रीफिनिश प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव अप्रूवल है फॉर मारुति, एंड वी आर ओनली कैटरिंग एज ऑफ नाउ, टारगेटिंग ओनली द मारुति डीलर, मारुति स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं, तो चैलेंज, फिर तो उनको बाय डिफॉल्ट आप ही का प्रोडक्ट बेचना चाहिए। देखिए सर क्या हो गया, ये सपोज ये वाली प्रोडक्ट है जो रिफिनिशिंग प्रोडक्ट्स, ऐसा है, मैं उसको कैसे, कंपल्सरी यूजेज नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मारुति स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ही इज बाउंड टू बाय मारुति प्रोडक्ट्स, बट द गैरेजेस आर नॉट बाउंड टू बाय माय प्रोडक्ट्स। They will buy whatever cheap products or whatever counterfeit products they will get in the open market, because garages are not Maruti branded or Maruti approved. Only the spare part distributor is the Maruti approved distributor, and if the garages demand, then he can only sell my products. So ओके, challenge तो is not, मैं challenge is समझ not the गया, competition. ओनली इफ द गैरेजेस डिमांड। Yes,
can a dealer sell can a dealer sell Maruti branded Nippon products? जी Maruti branded Nippon automotive refinish products. जी आई होप आप मेरा पर्पस समझ रहे हो। मैं नीचे 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 आता जा रहा हूँ ताकि जी मुझे समझ आ जाए कि भाई है कहाँ पे, मतलब वेयर लाइज द मीट ऑफ द मैटर। राइट तो अब हम आ गए कि भाई फाइनली ये फाइनली गैराजेस हैं जो हमारा एरिया ऑफ वर्क है, हाँ जी। राइट? अब आपका प्लान क्या है? हाउ डू यू प्लान टू टैप गैराजेस? अच्छा सर, इसका प्लान में ऐसा है, सबसे पहली बात तो लाइक आई विल नो डाउट प्रोडक्ट जो हमने डेटा लिया है, डेटा साउंड्स वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड लाइक बड़ा बहुत अच्छा डेटा लग रहा है हमको। सबसे पहली बात, रीफिनिशिंग, जो पेंट के बाद जो पेंट होने, सपोज एक डेंटिंग पेंटिंग एक पैनल पेंट हुआ है, उस पेंट के बाद में वो रबिंग करेगा, रबिंग लाइक रीफिनिशिंग करेगा नहीं करेगा, दैट इज एट हिज डिस्पोजल। अगर वो बोलेगा कि नहीं मैंने पेंट इतना अच्छा किया है, मेरे को इसके अंदर रबिंग की या रिफिनिशिंग की जरूरत ही नहीं है, तो शायद वो ना भी करे। तो पहली बात तो हमको उस प्रोडक्ट की जो जरूरत है, उस जरूरत को हमको पैदा करना पड़ेगा। forget about like garages, even there are मारुति डीलर्स themselves जो बोलते हैं कि हमको तो रिफिनिशिंग की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, our paint booth is so nice and we paint our cars so well that we don't need the refinishing products. बेसिकली रिफिनिशिंग प्रोडक्ट्स का जो यूजेज होता है वो इसलिए होता है कि जब पेंट करते वक्त कुछ पेंट का डिफेक्ट रह जाता है, उसको रिमूव करने के लिए रिफिनिशिंग किया जाता है। Hey, Ashish, just give me a minute. या Just give me a minute. There is somebody at the door. Just give me a minute. I'm alone at home. या श्योर श्योर, यू कैन कैरी। अच्छा, अब ये जो गैराजेस होते हैं वहां पेंटर्स बताते हैं कि रीफिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? सर देखिए, गैरेजेस होते हैं वो छोटे गैरेजेस होते हैं, वहाँ पे पेंटर अलग वगैरह नहीं होते, बिकॉज जो गैराज ओनर होता है वो खुद ही काम करता है, एक मिनट, पेंटर एक भी मिनट, होता सॉरी आशीष, मैंने अपने ईयरफोन्स नहीं लगाए और मुझे लग रहा था कि आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट।
ओके ओके। हाँ, अब आ रही है। गॉड, व्हाट अ कंफ्यूजन। अच्छा, नो तो नो। ये जो गैराजेस हैं, ये तो बोलते हैं भाई हम अच्छा पेंट करते हैं, हमें जरूरत नहीं है। हाँ जी। लेकिन हमारे टारगेट है वो अनऑर्गेनाइज्ड गैराजेस। हाँ जी। वहां पे ये रिक्वायरमेंट पेंटर देता है। हाँ सर, देखिए, जिसको भी अच्छा काम करना होता है, लाइक जब हम लोग मास की बात कर रहे हैं कि जो 3-4 हजार गैरेजेस जैसे मैंने खाली एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में है, तो हम लोग राइट इन जनरल नहीं बोल सकते कि कोई भी पेंट नहीं करेगा या कोई भी फ्री फिनिशिंग नहीं करेगा। उनमें से कुछ ऐसे अच्छे डीलर होंगे, 15-20% ऐसे अच्छे गैरेजेस होंगे जो अच्छा पेंट करके अच्छा रिफिनिशिंग करना चाहते होंगे और करते भी होंगे। और वो लोग तो आज कुछ। तो हाँ जी। व्हाई इज द रीफिनिश रिक्वायर्ड? Refinish is required to whenever there is any defect in paint while painting, because normally जो आफ्टर मार्केट में जब कार का एक पेंट होता है, तो कार डीलरशिप पे तो फिर भी एक पेंट बूथ होता है। देयर इज अ पेंट बूथ विच इज लाइक काइंड ऑफ टोटली वैक्यूम काइंड ऑफ एरिया और क्लीन एरिया विद लॉट ऑफ एयर फिल्टर्स एक्सेट्रा, जहाँ पे पेंट किया जाता है। वहां पे भी डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ड्रॉप्स इन पेंट्स वगैरह आ जाता है, बिकॉज जब आप पेंट करेंगे ना, घर पे भी पेंट देखेंगे तो पेंट का जो ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है, तो दोज आर कॉल्ड एज पेंट डिफेक्ट्स। तो उन पेंट डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एक रिफिनिशिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, को अप्लाई किया जाता है। तो कुछ अच्छे गैरेजेस भी हैं जो लोग पेंट करने के बाद उसको, उनको मालूम है कि हमको रिफिनिशिंग करना चाहिए, रबिंग कंपाउंड यूज करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा ग्लॉस, अच्छा एक पैनल दिखाई दे। तो वो लोग, हम लोग को देखिए, 4,000 गैरेजेस सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में है, 4,000 के आशीष 4,000 आशीष यूनिक करेंगे। आशीष, एक क्वेश्चन प्लीज, मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगा। हाँ व्हाट इज बिल्कुल द सर, आप। पेंटिंग कॉस्ट कितनी होती है एक कार की? एक कार की पेंटिंग कॉस्ट कैन गो अप टू 15,000 to 20,000 रुपीज, डिपेंड ऑन लाइक मेटेलिक है। हम लोग पूरे कार की बात भी नहीं कर रहे, जब एक्सीडेंट रिपेयर होता है तो सर एक या दो पैनल होते हैं। और रीफिनिश कॉस्ट कितनी होती है एक कार की? एक, अगर सर अगर पूरे एक कार की रिफिनिशिंग की बात करेंगे, तो इट विल कम टू अराउंड लाइक 500-800 हजार रुपए के आसपास। ऐसा है। तो मतलब 5% के करीब है रीफिनिश की कॉस्ट। बिल्कुल सर। सर उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, रिफिनिशिंग जो प्रोसेस है, कॉस्ट से ज्यादा जो है उनका जो टाइम जाता है उस प्रोसेस के लिए, वो उसके लिए ज्यादा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसे बचाने के लिए नहीं करते। जब एक 10 लाख या 20 लाख की कार जब पेंट होने जाती है, अच्छा, फॉर प्रैक्टिकल पर्पज आई जस्ट लेट यू नो। आई लॉस्ट योर वॉइस, आई लॉस्ट योर वॉइस। आशीष जी, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी, प्रॉब्लम एट माय प्लेस। नो नो इशू सर। वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, फिर उसे दोबारा कनेक्ट किया। वन सेकेंड, लेट मी गो टू माय नोट्स सो दैट आई डोंट मिस आउट। यू हैव बीन गिविंग अ वेरी गुड नैरेटिव, मुझे अच्छे से समझ आ गया ये है क्या आपका प्रोजेक्ट। जी। इससे पहले कि मैं आइडिएट कर सकूं इसके ऊपर। हाँ, आप कुछ बता रहे थे सर। तो सर मैं ये बता रहा था कि जो पूरी कार का पेंट का तो सवाल ही नहीं है, एक पैनल की बात होती है, जब पैनल या दो या तीन, अच्छा, जब एक पैनल पेंट होता है, सपोज हम अपनी कार लेते हैं, पर्सनल कार हम लेते हैं, अगर किसी एक कार का राइट साइड का पार्ट, फ्रंट का डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट हुई है, तो जो बॉनेट वाला पार्ट है उसको फेंडर बोलते हैं, राइट फेंडर डैमेज हाँ, हुआ है, हाँ, तो राइट फेंडर को उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस किया जाता है। हाँ जी। रिफिनिशिंग जो है उसके पास के दो पैनल्स को भी किया जाता है, सो दैट दे लुक्स इक्वल, लुक सेम। वरना क्या होगा, एक पार्ट फ्रेशली पेंटेड लगेगा, बाकी दो पार्ट पुराने लगेंगे, डल लगेंगे, तो इट दे नीड टू मेक इट लुक सिमिलर एंड लाइक क्लोज बाई। तो क्या होता है, 3 से 4 पैनल किया जाता है, तो द कॉस्ट पर कार विल कम टू ओनली 3 to 4 पैनल्स, विच विल बी हार्डली 250 to 3 रुपीज का कॉस्ट आता है गैरेजेस में। बट जो प्रोसेस होता है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं मुझे, they need to save the timings and the labor, because मेहनत बहुत करनी पड़ती है, because there are process which needs 4 to 5 times of 1,500 का पेपर, 2,000 का पेपर, रबिंग कंपाउंड, पूरी का जितने पैनल पे सेम करना है, 1,500 का पेपर से पूरा पैनल को क्लीन करना है, 2,000 के पेपर से वापस उसको फिनिश करना है,
रबिंग कंपाउंड लगाना है, What सेम is the what is the cost of refinishing? 250 to 300 रुपीज, तो ये सारा पेपर वगैरह सब उसी में हो जाता है? सब सब उसमें आ जाता है। 250 to 300 पर पैनल? हाँ, पर कार हम गिन लेते हैं या पर जॉब कार्ड गिनते हैं नॉर्मली हम लोग, बिकॉज एक्सीडेंट में 2 से 3 पैनल ही रिपेयर होती है। इट्स 100 में से एक कार होगी जिसमें ज्यादा कुछ डैमेज होगा, बाकी नॉर्मली इतना ही होता है। तो अच्छा, तो मैं समझ गया, मतलब एक 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 दो पैनल्स का इतना खर्चा आ जाता है, हाँ जी, जिसमें आप बोल रहे हो रबिंग भी होती है, पॉलिशिंग भी हो, सब कुछ हो जाता है इसके अंदर। पेपर्स भी आ गए और सब कुछ आ गया, वैक्स भी आ चलिए, गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए आपका प्लान क्या है ये करने का? हाउ आर यू गोइंग टू? अच्छा, इसमें दो सेल्स पे आप थोड़ी लाइट डालिए। पहला प्राइमरी सेल्स का और दूसरा सेकेंडरी ऑफटेक का। मतलब जी, पहला प्लान फॉर द 19 डीलर्स, हाँ जी, इनसे माल कैसे उठवाएंगे, एंड 19 डीलर्स प्राइमरी, एंड से हम मान लेते हैं कि अगर आपके एक ही डीलर के 4,000 हैं एक्टिव डीलर्स, तो 19 के हम 7,500 या 7,000 मान के चलते हैं, हम्म। एंड 7,000 डीलर तो आउट। सारे सारे इतने बड़े नहीं है, जैसे ये एक मैंने राजस्थान की एक बात की है, सारे इतने अच्छा बड़े चलो, नहीं है, कुछ पांच छोटे। हजार मान लेते हैं, 5,000 मान लेते हैं। बिकॉज जैसे इंडिया ऑटोमोटिव जिसको मिल के आया वो ही, राजस्थान itself इज अ वेरी वेरी बिग स्टेट एंड दे आर कैटरिंग टू 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनका एक नेटवर्क अलग होगा। मैं जो समझ छोट गया आशीष। एक ये वाला बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ जी, 5,000 मान लेते हैं, चार तो इसी के, चलो 1,000 ऊपर और मान लेते हैं। हाँ जी, हाँ 5,000 गैराजेस का हमें सेकेंडरी सेल्स देखना है। जी, प्राइमरी तो डीलर ही सप्लाई करेगा, यही डीलर हाँ, सप्लाई करेंगे। यही लेकिन डीलर आपको करेंगे। ऑर्डर जनरेट करवाना पड़ेगा गैराजेस पे, ताकि रिक्वायरमेंट बनाए आप, मतलब डिमांड बनाए, हाँ जी, ताकि ये बोले कि हाँ हम लेने को तैयार हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के मेन क्रक्स पे, ये आप कैसे करने वाले? जी, देखिए सर, सबसे पहले जो इसके अंदर करना है, जो प्रोजेक्ट का पार्ट है, वी आर 3 people in my territory, or we already have 250 to 300 customers which we are servicing for our regular business। यू मीन टू हम से लोग गैराजेस? नहीं, जो ऑथोराइज डीलर्स, बिकॉज ये तो सर मेरा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है, जो मेरी एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें हम लोग एज ए रीजन हम लोग 250-300 कस्टमर को ऑलरेडी कैटर करते हैं। ठीक है। दोज आर द कार डीलर्स। दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर द स्पेयर पार्ट नेटवर्क। अभी जो इसके अंदर बेसिक हम लोग काम करना ये चाहते हैं कि we cannot go to the garages, frankly speaking we don't have the kind of manpower, we cannot go to the garages and generate order, because उसके लिए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिएगा। I have worked into the lubricants, you have worked into the liquor business, you know the distribution के लिए आपको फुटफॉल चाहिए। मतलब एक टाउन में एक आदमी चाहिए जो दिन के 15-20 कॉल कर सके, तब जाके वो सब हो पाता है। बट आवर मॉडल्स ऑफ अप्रेंटिस विल बी देयर कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं है। वी डोंट हैव टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑलरेडी देयर। वी डोंट हैव टू बिल्ट अप अ नेटवर्क, नेटवर्क इज ऑलरेडी देयर विद हिम। वी हैव टू फाइंड एन इन्फ्लुएंसर एंड लाइक वी हैव टू फाइंड इन्फ्लुएंसर्स विद इन द डीलरशिप नेटवर्क, स्पेयर पार्ट नेटवर्क। उनके पास ऑलरेडी, उनके पास एक बड़ा मॉल है, उनके पास 5,000 प्रोडक्ट बिक रहे हैं। मेरे को खाली उनमें जाके उनके जो सेल्स ऑफिसर्स हैं, जो उनके जो लोग ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, उनको कन्विंस करना है कि आप लोग जो ऑलरेडी बिजनेस लेने जा रहे हैं आपके, या फिर आपके ब्रांचेस पे लोग माल लेने आ रहे हैं, आप उनको मेरा भी महीने का 4-5 बॉटल G3 का, 3-4 बॉटल वैक्स का और 1-2 मेरा वुल पैड आप प्रमोट कीजिए। तो उसके लिए आइदर द स्पेयर पार्ट नेटवर्क विल गेट like some incentive, or the sales people will get some incentive। जो स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क के मैन पावर है, they will get some incentive which we will provide those incentive to them, so we will use those influencers to get our business। Is it okay if I write this that the dealer level may not work, so incentivization should need to be at the canvasser level, yes, right? जो बंदे डीलर्स पे खड़े होते हैं। हाँ, जो वो लोग डेली मार्केट में भी जाते हैं, डेली 15-20 गैरेजेस जाते हैं, स्पेयर पार्ट का ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। और कुछ गैरेजेस ब्रांचेस में भी आते हैं, जो ब्रांच पे बैठता है आदमी, उस ब्रांच का आदमी भी
जो वो ब्रांच मैनेजर है या ब्रांच एग्जीक्यूटिव है जो रिटेल दुकान संभाल रहा है ब्रांच की, उसकी उस अगर वो इंसेंटिवाइज होगा कि उसको एक बॉटल पे 20 रुपए 25 रुपए मिल रहे होंगे, तो ही विल ऑल्सो पुश कि जब एक गैरेज वाला उससे महीने का 1 लाख 1.5 लाख का माल लेता है, तो एक 5-6 बॉटल जिसकी वैल्यू 8-10 हजार रुपए है वो उसको बेच पाएगा तो कितने यूजिंग हिज कैनवस, रेपो। हाँ तो कितने कैनवसर्स होंगे इन डीलर्स और इनकी एफिलिएट आउटलेट्स पे मिला के? सर एवरी ब्रांच विल हैव वन रिटेल एग्जीक्यूटिव विल बी देयर एवरी ब्रांच। जैसे मैं आज चोमू के ब्रांच पे गया, तो चोमू के ब्रांच तो वो हमने, दुकान है। हाँ हमने 100 ब्रांचेस मान लिए कि इन डीलर्स के हैं। हाँ जी। हर डीलर का 4 से 5 ब्रांच है। हाँ जी। और अगर हम हर एक पे एक भी माने तो कैन वी से दैट एटलीस्ट हमारा यूनिवर्स 100 का है? हाँ जी। अच्छा, अब सर हमारे प्रोडक्ट इसमें सर कैच रहेगा। कैच क्या? ये रहेगा कि ये जो कैनवेसर्स हैं दे आर बेसिकली डाउन लेवल के एग्जीक्यूटिव्स है हु आर ओनली ऑथोराइज टू सेल, एंड जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसको बेच सकते हैं। दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। सो फॉर डिसीजन मेक वी हैव टू, अच्छा अच्छा, जो डीलर के स्पेयर पार्ट के जो ओनर्स होते हैं, द मेन डिस्ट्रीब्यूटर देमसेल्व्स, दे आर बिग शॉट्स लाइक 200-300 करोड़ के मालिक होते हैं। उनको मैं जाके अगर 5-10 लाख के प्रोडक्ट की महीने की बात करा करूंगा, तो दे में इनिशियली दे में नॉट गिव अस वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है कि मारुति के 5,000 इंस्टेबल। हाँ जी, हाँ जी, वी आर बैक। स्पेयर पार्ट डीलर का जो ओनर है, जो हाँ, स्पेयर पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर हिमसेल्फ द इन्वेस्टर, बिकॉज ये बड़ा बिजनेस है, मारुति स्पेयर पार्ट नहीं का बिजनेस बड़ा है। उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसका इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। वो बोलेगा भैया मेरे लड़के के पास में पूरा मारुति की लिस्ट है, बिकॉज मेरा पार्टी भी उसका उस लिस्ट में उसके पास है। वो बोलेगा अगर मेरा लड़का उस चीज का ऑर्डर लेके आएगा तो मैं मंगा लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उस ही इज द ओनर इज द लीस्ट कंसर्न। नाउ उनके पास में कुछ तो जनरल मैनेजर्स होते हैं या मैनेजर्स लेवल के लोग होते हैं, उनको हमको जो है अपने फोल्ड में लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें भी सर दो चीजें होगी। कई जगह ऐसा होगा कि मतलब जो मैनेजर होगा वो हमसे डिस्कस करके, और उसको अगर हम कुछ इंसेंटिवाइज कर देंगे तो ऑफिशियली बॉस को अनाउंस किए बिना इस प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करवाना स्टार्ट करवा देगा। कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां बोलेगा नहीं मैं तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बॉस डिसीजन लेगा, वो कराएगा। कहीं जगह ऐसा होगा कि रिटेल ब्रांच मैनेजर वाला इतना स्ट्रांग होगा, बोलेगा मेरे को किसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं, मेरे पास डिमांड आएगी मैं खुद ही बेच दूंगा, आप मेरे को इंसेंटिव दो मैं खुद ही मंगा के बेच दूंगा। तो केस टू केस बेसिस पे जाना पड़ेगा। नहीं ये तो अब ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक एक उस सिनेरियो में चलते हैं आशीष। हाँ सो जी। फार इज गोइंग वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि बंदा जो आउटलेट के जो कैनवसर है, हाँ जी। या तो उसके पास कोई खरीदने आ गया या वो खुद कहीं विजिट पे गया, हाँ जी। वहां जाके उसकी प्रोबिंग पिच में हम क्या ऐड करवाना चाहेंगे? हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जाके पूछेगा गैराज पे, और अगर जैसे गैराज ओनर बोलता है अच्छा ये आपके पास है तो मुझे दे दो, 4 बोतलें दे दो, हाँ जी। मैं कस्टमर्स पे ट्राई करके देखूंगा। तो हम्म। डू यू थिंक यहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी कैनवसर्स की? से कैनवसर को इनिशियली खाली सिर्फ उनको ये देखिए, एक गैरेज के अंदर एक कार पे जब गैरेज में जाती है कार, तो उस पे हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। कार वॉश भी होता है, डेंटिंग पेंटिंग भी होता है, मैकेनिकल रिपेयरिंग भी होता है, पीयूसी भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले तो जो कैनवसर होगा, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ मैं, कैनवसर आप बोल रहे हैं, तो उस इंसान को पहले पता होना चाहिए कि ये भी एक एस्पेक्ट है जहाँ पे एक बिजनेस एडिशनल आ सकता है। क्योंकि ठीक है। उसका भी तो बिल ऑफ मटेरियल बढ़ेगा ना, उसका ऑर्डर भी तो हाँ, बढ़ेगा। उसका बिल ऑफ मटेरियल बढ़ेगा, उसका ऑब्वियसली उसका मटेरियल बढ़ेगा, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, उसको खाली अवेयरनेस होनी चाहिए। उस पर्पस के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे कि मेरी बात हुई है अहमदाबाद में, मेरे बात हुई है जो अहमदाबाद का डीलर है उसका जो मैनेजर है उसके साथ बात हुई है कि हम लोग उसके जो 2-3 मेन स्टाफ है, जो मेन सेल्स के लोग हैं, उनको साथ में लेके एक गैरेज पे हम लोग प्रोडक्ट का एक छोटा डेमो करके देंगे, 1 या 2 पैनल पे डेमो करके देंगे।
उसकी इफेक्टिवनेस बताएंगे, सो दैट दे आर मेंटली कन्विंस कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है, ये प्रोडक्ट ऐसे यूज होगा, इसका मुझे ऑर्डर लेना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जगह पे वो लोग का काम सिर्फ उस एप्लीकेशन का हाईलाइट करके दे हैव टू जस्ट कलेक्ट द ऑर्डर्स। आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो बिकॉज आप, सपोज मैं आप जस्ट जैसे कहना चाहता हूँ कि सपोज एक एज ए सेल्स पर्सन उसको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से मैं बिजनेस ले सकता हूँ, तो वो मैं जाके समझ बिजनेस। गया हूँ। ट्रेनिंग फॉर अवेयरनेस ऑफ कैनवसर्स इज रिक्वायर्ड। यस। ये एक चीज हो गई। अब आप ये करना कैसे वाले हो? हाउ विल यू क्रिएट हैंड एंड फीट इन द फील्ड? आपका प्लेस ऑफ वर्क है अहमदाबाद, बट यू आर वर्किंग एक्चुअली प्रैक्टिकली एवरीवेयर। तो डू यू प्लान टू हायर इंटर्न्स? नो, आई डोंट थिंक विल बी हायरिंग इंटर्न्स, बिकॉज हम लोग जो हम तीन लोग हैं, मेरे अंदर में दो लोग ऑलरेडी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इस चीज को इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, जैसे मेरा मेरा एक टीम मेंबर जयपुर बेस्ड है, एक टीम मेंबर मेरा पुणे बेस्ड है, आई एम माई सेल्फ बेस्ड इन अहमदाबाद। तो इन फर्स्ट immediate first week, first 8-10 days, we want to carry it out in our own headquarter area, जहाँ पे हम लोग खुद बेस्ड है, जहाँ पे मतलब कोई भी एक जगह जाना है, दो जगह डेमो करने जाना है, 2-3 जगह उसके साथ में विजिट्स करनी है, वो भी हम कर लेंगे। सो दैट क्या होगा, ही विल हैव वंस गॉट 2-4 जगह हम उनके साथ विजिट कर लेंगे, तो ही विल हैव द कैनवासर विल हैव द अवेयरनेस कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को मुझे ऐसे बेचना है। और जब उसको रियलाइज आ जाएगा कि रियलाइज हो जाएगा कि गैरेज वाला ये प्रोडक्ट मेरे से नहीं, बाहर से लेके वुड्स का लोकल मटेरियल लेके या 3M का लोकल शॉप से मटेरियल लेके बेच रहा है, या नॉर्टन का प्रोडक्ट लेके बेच रहा है, तो वाई नॉट मुझसे मैं ही लेके बेच दूं। हम्म। ठीक है ना। उसको क्या करना, उसको तो खाली जो अपना डेली का उसका जो पार्ट्स का लिस्ट होता है, जहाँ पे वो ही हैज गॉट, सब लोग डिजिटल आजकल उनका सिस्टम है, ही हैज टू जस्ट punch in our part number, he has to order the material and he will have to sell. हाउ डू यू प्लान टू यूज द इंक्यूबेशन फंड? पहले मुझे ये बताओ, आपको क्लैरिटी, आपको कितनी सेल करनी है इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट में पास होने के लिए? ये समझा नहीं मैं। आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है इस प्रोजेक्ट में? सर मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, लाइक प्रोजेक्ट पीरियड में मुझे जो है 10 लाख के हिसाब से, 10 लाख पर मंथ के हिसाब से मैंने टारगेट लिया है मैंने। नहीं नहीं जी, वो तो टारगेट हो गया। प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, कितना करो? 1.25 लाख करो, 1 लाख करो? डिडंट गेट यू सर। आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज अबाउट डूइंग अ सेल्स ऑफ 1 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज। हाँ। बेस सेल्स आपने 1.25 लाख की करनी है। हाँ जी। 1.25 लाख की करने के लिए आपको, मतलब मुझे ये काफी डुएबल प्रोजेक्ट लग रहा है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। सर उसमें देखिए डुएबल है। मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूँ, वो जो पूरा का पूरा मैंने डेटा शेयर किया है सर, हाँ। ये डेटा बेसिकली मैं और मेरे बॉस से जो मेरी बात हो रही है, ये हम लोग डेली जो बात करते हैं इस बारे में, ये 3 महीने का प्रोजेक्ट में तो सर हो सकता है फ्रैंकली स्पीकिंग में सिर्फ 2 या 3 या 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग क्लोजली काम करके हम लोग एक रेवेन्यू जनरेट कर पाए। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये लॉन्ग टर्म में ये हमारी पूरे एक ओईएम बिजनेस का एक पैरेलल बिजनेस एडिशनल हो सकता है, जो कमिंग इन 6 महीने 1 साल में, जो हम लोग आज मेरे एरिया में जो मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ करंटली, तो हम लोग 50-60 लाख का एडिशनल बिजनेस इन कमिंग 6 months to 12 months I वी got कैन। it. That's the larger picture. That, and सर अभी you are saying this business can become as big as your main business. सर जस्ट एक उसका सिंपल मैं मैथ्स तो नहीं बोलता हूँ मैं। इन सेल्स वी यूज लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल चीज हम लोग बनाते हैं कि जैसे ये इंडिया ऑटोमोटिव है, दिस इज हाउ आई प्रमोट माई मोटिवेट माई टीम मेंबर कि इंडिया ऑटोमोटिव का 5,000-4,000 कस्टमर एक्टिव कस्टमर है, उसमें से 1,000 कस्टमर जो है वो बॉडी शॉप का काम करता होगा। अगर वो 1,000 कस्टमर सिर्फ मेरी एक G3 की बॉटल, सिर्फ 1 बॉटल ऑफ G3 एंड 1 बॉटल ऑफ वैक्स यूज करेगा, then also he will be contributing 3,000 rupees per month to us। और ऐसे पर मेरे पास ऐसा 19 है। पर ऐसा होता नहीं है। ये नहीं सर। कैलकुलेशन स्ट्रेटजी लेवल पे तो बहुत अच्छी लगती हैं। यस यस, दैट इज हम लोग इसको इनिशियली फोकस जो है, हम लोग डायरेक्ट फोकस हम लोग टॉप लेवल पे करेंगे। बट जब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जब ऑर्डर लाने लगेगा, जब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव खुद ऑर्डर लाने लगेगा, और उसका जो कंपाउंड इफेक्ट आएगा, जो पहले वो क्या करेगा खुद ही 2-4-5 गैरेज में बेचेगा, जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा वो और 10 जगह बेचेगा,
फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि गैरेज वाले को बिना पूछे हर महीने 2 बॉटल भेज दिया करेगा कि भैया 2 बॉटल 4 बॉटल तेरे को आ रही है। तो जब जब तक वहां पहुंचेगा तब तक लाइक इट कैन बिकम अ बिग बिजनेस। When will the awareness drive be over? सो आई थिंक वी विल हैव टू कैरी आउट, लाइक इसको करना ही पड़ेगा, 2-3 महीने हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कितना? लाइक एंटायर प्रोजेक्ट पीरियड हम लोग इसको अवेयरनेस करना पड़ेगा, बिकॉज या तो फिर हमको एक काम करना पड़ेगा, बिकॉज ज्योग्राफी बड़ी है ना सर, ज्योग्राफी बड़ी है तो हम लोग या तो सेलेक्टिव ज्योग्राफी पकड़ या के। आप एक काम करो ना, जैसे 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप इनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर के टॉप 2 आउटलेट्स पकड़ लो। हाँ, ये भी नहीं सर, उसमें एक मतलब और उसमें एक लिमिटेशन भी है कि 19 के टॉप 2 पकड़ूंगा तो उसमें दिक्कत ये है कि मैन पावर इज बेस्ड इन राजस्थान, मैन पावर इज बेस्ड इन गुजरात, मैन पावर इज बेस्ड इन पुणे। एमपी में भी कोई आदमी बेस्ड नहीं है, एमपी में आदमी अहमदाबाद राजस्थान से ट्रैवल करता है। तो हम लोग अच्छा, ये काम कर सकते हैं कि तो आपके तीनों बंदे तो, कहाँ कहाँ पे हैं? सर हम 3 लोग हैं टोटल मेरे को मिला के। आई एम एक एट तो अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया, एक जयपुर एक हो गया। जयपुर में है और एक पुणे में है। तो आई तो थिंक हम आप शुरू में इन्हीं तीनों जगहों के डिस्ट्रीब्यूटर्स कवर करो। हाँ जैसे देखिए सर, मेरा मेरा पूना वाला बंदा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है बॉम्बे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो वो बॉम्बे और पूना हम दोनों करेंगे। अहमदाबाद एंड बड़ौदा आई विल कवर, एंड गुजरात राजस्थान में वी विल कवर मोस्टली जयपुर। इंडिया ऑटोमोटिव अपना पे बहुत बड़ा डीलर है, और उदयपुर जहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंट ट्रैवल होना पड़ता है, बिकॉज वी हैव गॉट की अकाउंट्स, बिग अकाउंट्स देयर। और इन 4 जगहों पे कितने डीलर्स होंगे? मतलब कितने डीलर्स बाहर निकल जाएंगे? सर इन सब में एक एक ही डीलर होंगे बड़े, बिकॉज मैंने आपको कहा था सारे मेट्रो सिटी में एक एक ही बड़े डीलर है। वो लोग ही आप आसपास के छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। वी आर रिड्यूस टू 4 डीलर्स जिन पे हम फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट में। नहीं सर, इससे ज्यादा करेंगे एक्चुअली, इससे 19 को हम नहीं करेंगे, हम लोग अपने स्टेट के जो बड़े हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि गुजरात के जो 3-4 हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, चारों को किया जाए। पूना में W2 में बेसिकली बॉम्बे और पूना 2 को किया जाए, बिकॉज नागपुर की ज्योग्राफी बहुत दूर है। और राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, इन 9-10 को हम लोग फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। अगर हम तो ट्रैवल नहीं करते तो बात है। ओवरऑल हम कितने डीलर्स हो जाएंगे? तकरीबन 10 बोल दें। 10, उसमें मैं MP का इंदौर भी कंसिडर करूंगा, बिकॉज मेरे बंदे का इंदौर में एक साइजेबल टाइम महीने का 4-5 दिन जाता है। तो वहां अच्छा। पे जब 4-5 दिन जाएगा तो वहां पे वो थोड़ा दिन का 2-3 घंटे डेली निकाला करेगा उसके पास जाके। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अवेयरनेस कब खत्म करोगे? मतलब कब डीलरशिप्स को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें ये सब काम करना है? एंड व्हेन कैन यू गिव मी द डेटा ऑफ कैनवसर्स? सर डेटा ऑफ पहले तो मेरे को सबके पास जाना पड़ेगा। वी हैव स्टार्टेड गोइंग रिसेंटली ओनली। वी हैव तो मे बी बाय 10th of June। कर लो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आशीष, मैं अब थोड़ा प्रेजेंटेशन हटा रहा हूँ। हाँ आप जी अपना इंक्यूबेशन फंड कैसे यूज करने वाले हो? सर, इंक्यूबेशन फंड देखिए मेरे पास अभी एज सच कोई दूसरा ज्यादा नहीं है। तो इंक्यूबेशन फंड को जो मैंने है उसको हम लोग यूज करेंगे फॉर अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव वाइल विजिटिंग द गैरेजेस, जो हम लोग जो भी हमारे 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसको हम कैटर कर रहे हैं, उनके जब हम गैरेजेस में जाया करेंगे तो वी विल हैव टू कैरी सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तो प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग की जरूरत पड़ेगी, और कुछ जो ऐसी चीज रहेगी जो मतलब एक ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए नॉर्मली गैरेजेस में चलता है कि आप गए तो उनको आपने एक छोटा सा प्लानर दे दिया, 1-2 पेन दे दिए, तो वो सब चीज हो गई। आई वॉज अबाउट फिर टू से दैट ब्रांडेड प्रोडक्ट रिमाइंडर्स। यस, Would you बिकॉज like सर to मैं would you like to run some contest? नहीं सर, कॉन्टेस्ट अभी क्या, हम लोग इतने बड़े हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग एक्टिवली, मैं गैरेज में काम नहीं कर रहा हूँ सर। कॉन्टेस्ट आई हैव डन बिफोर इन माय व्हेन आई यूज्ड टू सेल लुब्रिकेंट्स। आई हैव वर्कड इन टोटल एंड वैल्वोलिन। तो हम लोग हार्डकोर गैरेजेस में सुबह से शाम लोग 15 से 20 गैरेजेस में जाते थे, हम लोग डायरेक्टली एंगेज करते थे। तो जब हम डायरेक्टली एंगेज करते थे तो उसको आपको स्कीम रन करना इजी होता है। अभी तो मैं अलग हूँ, निपॉन मतलब निपॉन पेंट अलग कंपनी है। हम लोग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं मारुति को, मारुति वो प्रोडक्ट दे रहा है अपने मारुति के स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, और उसके बंदे बेच रहे हैं गैरेज को। तो हमारा डायरेक्टली एंगेजमेंट बहुत कम है।
तो हमारा जो एंगेजमेंट होगा वो ज्यादातर हमारा कैनवसर के साथ ज्यादा होगा। तो चलो ठीक है ठीक है। 1 second, let me get out of this page. Okay, so it was nice speaking with you. That was a good download that we had. थैंक यू सर। What I would like to understand from you is what will be your first 3 action items? My first 3 action item for next 15-20 days will be that immediately to get in touch all those 8-10 dealers जिसकी हमने बात की है, उनको हम लोग इमीडिएटली हम लोग कांटेक्ट करें। उनके हम लोग जो मेन उनका जो मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स से कांटेक्ट करें और उनको कन्विंस करके फर्स्ट हैंड हम लोग समझ में एक जानकारी ले लें कि डिसीजन मेकर कौन है, तो मैनेजर है, ओनर है, या जो रिटेल ब्रांच मैनेजर के पास हम जाएंगे तो हम लोग वहां से काम निकाल लेंगे। तो मेरा काम कौन करेगा वो पहले मुझे समझ में आ जाएगा, देन इट विल बी इजी टास्क फॉर मी टू मुझे कि किसको टारगेट क्या करना है। सेकेंड, वंस दैट इज डन, द डिसीजन मेकर एक समझ में मुझे आ गया। अब मैं खाली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वेंट टू द अहमदाबाद। आशीष, ये मैं समझ गया आपकी बात। क्या आप मुझे अगले आधे घंटे में अपना ये 3 पॉइंट भिजवा दोगे, which is very important. आई डिडंट गेट यू। I want your 3 action items that you will do to Okay. complete your project. Like first, you are saying you'll make a database of the right people. You will identify your decision makers and your influencers, which is a Right. nice strategy. I love it. I love it. And Okay. you want to know, our first 3 action items should be identify your decision makers. Second will be And carrying out the demos and training for the canvassers. हाँ, मैं वही बोल रहा था, identify your decision makers and क्या था दूसरा? Influencers. हाँ, जो हमारे ट्रेनिंग एंड Manager. डेमोस फॉर द ट्रेनिंग एंड डेमो फॉर द इन्फ्लुएंसर्स और कैनवसर्स। Okay. Next is communication plan, which includes training. ठीक है? सर आपने क्या लिखा है? पहला तो लिखा आपने Identify your decision makers and influencers. यस। And इसमें मैं लिख रहा हूँ share a list with contact details. ओके। और सेकंड विल बी सेकंड रहेगा कि हम लोग एक Communication plan. How will you create it? How will you do the training and by when? ट्रेनिंग विल बी डन इन एंटायर जून, बिकॉज 10 डिस्ट्रीब्यूटर है हम लोग। हमारे रेगुलर बिजनेस के साथ में जब विजिट क्या करेंगे तो मैं पहले 15 दिन में डेडिकेटेडली सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं जा पाऊंगा। जब जो मेरी रेगुलर प्लानिंग है, जो मेरे करंट बिजनेस को लेके जब हम ट्रैवल करेंगे तभी हम लोग किया करेंगे। तो लाइक बाय एंड ऑफ जून वी विल कैरिंग आउट द ट्रेनिंग एंड डेमोस फॉर ऑल दिस 8-10 डीलर्स आइडेंटिफाइड। Okay, ठीक है. So you are saying by 10th of June. बाय मिड ऑफ जून यू कैन नहीं, कंसीडर। जून 10th ठीक है, मैं तो जून 5th बोलने वाला था। तो पर जून फिर जब 5 मैं देखिए, अभी तो देखिए सर, मैं मंथन करूंगा। मंथन करने के बाद मेरे पास 5 दिन बचेगा सिर्फ। मैं 5 दिन में हम लोग इतनी जगह पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, तो मैंने इसलिए जून 10th कर दिया। जून 10th तक आप कर ठीक है, दीजिए इसको। ठीक अब मैं आपसे अपना कुछ लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जी। जो लोग पहले महीने में खत्म कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। हम्म, बिजनेस एजेंसीज आपको खींचती रहेंगी, सब करती रहेंगी। जी। आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है यार। अभी इन सेल्स ऑल थ्रू बस चलो 4-5 आउटलेट्स के ऑर्डर पकड़ा के अपना 4-5 डीलर भी रेगुलरली ऑर्डर लेने शुरू कर दें छोटे छोटे, आपका हाँ प्रोजेक्ट निकल जाता है। सर, मेरा मेरा अभी जो एम है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये प्रोजेक्ट का जो 1-1.25 लाख रुपए है वो मेरे को लगता है कि ठीक है, वो प्रोजेक्ट निकल जाएगा। माय एम इज टू लाइक इसको एस्टेब्लिश फॉर लॉन्गर टाइम के लिए करूं, सो दैट मेरे मैंने लिए आशीष, सस्टेनेबल मैंने हो वो जाए। बात समझ ली। फाइन, स्ट्रेटेजिकली दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, बट या टैक्टिकली टू गिव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, लेट्स डू दिस इनिशियल सेल्स। व्हाट योर पॉइंट लाइक, तो फिर मैं राइट? इस चीज को हाँ, हाँ, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। एंड आई ठीक एम है। विद यू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। In fact, I'll also start generating ideas about how you can do this, what kind of training material you should make. I think you should use the incubation fund somewhere, either to incentivize these people or to make some nice, a nice need document for refinish. Why is सर देखिए, refinishing required? आई जस्ट एक्सप्लेन यू सर। इंसेंटिव के लिए मुझे लगता है कि हमको लाइक आवर करंट बिजनेस ऑलरेडी, लाइक जो करंट बिजनेस करता हूं मैं, बिकॉज वी आर नॉट टचिंग ऑन प्राइसिंग एट ऑल। हम लोग ने अभी तक प्राइसिंग की कोई बात नहीं की, बिकॉज प्राइसिंग एंड एटसेट्रा
एवरीथिंग इज फ्रोजन बाय मारुति, हम लोग उसी प्राइस पे काम कर रहे हैं। एंड वी ऑलरेडी हैव अ इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओन, जो हम लोग एग्जिस्टिंग नेटवर्क में यूज करते हैं, तो वो इंसेंटिव तो मैं वहीं से यूज करूंगा। ठीक है, आई विल कन्विंस माई बॉस कि अगर मैं एक बॉटल पे 20 रुपए किसी को मैं मारुति डीलर में दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी दे लूंगा, वो मैं कन्विंस कर लूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस इज सेम। तो मैं इंसेंटिव तो वही यूज करूंगा, बट इंसेंटिव को स्लैब्स कैसे यूज करना है, दैट आई विल फाइनलाइज बाई 5 जून, की मुझे इंसेंटिव को कैसे कैसे मुझे देना है, स्लैब बना के देना है। बिकॉज इंसेंटिव बनना इस तरह का चाहिए कि सामने वालों को इंटरेस्ट भी आए। बिल्कुल छोटी अमाउंट नहीं बननी चाहिए कि मतलब वो एक होता है ना, एक अमाउंट ऐसा होता है कि सामने वालों को इंटरेस्ट आएगा, यार मेरा 2000 रुपये बनेगा, तो वो काम करेगा। उसको लगेगा सिर्फ 200-400 रुपए के लिए मैं काम क्यों करूँ, उतना तो मैं पान में उड़ा देता हूँ। तो वो सब थोड़ा बिल्कुल वर्किंग करना है, तो वो भी मेरा एक बिल्कुल पार्ट ऑफ बिल्कुल एक्शन, मेरे पार्ट ऑफ एक्शन में एक वो भी रहेगा। बिल्कुल नहीं, बिकॉज वेरी नाइस, वेरी डुएबल प्रोजेक्ट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय यू। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आपने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया है। एंड थैंक यू हाँ सर। जी, आशीष, बस एक एक छोटा सा मैं आपको एक बीच में या वो बताऊंगा जहाँ पे आप वर्क करो। हाँ जी। मेक इट एन एक्शनेबल प्रोजेक्ट, ओके, जिसपे एक्शन हो पाए, और शुरू कर दो इसको। ठीक है, बिकॉज मेरे हिसाब से आप 1 महीने में खत्म कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। ठीक है, 2 आउटलेट भी शुरू करते हो तो उनको पकड़ के उनसे ऑर्डर लो, बिल्कुल सर। एंड उस ऑर्डर का हल्ला मचाएंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा ना, हम बोलेंगे भाई चलो आशीष ने अपना ऑर्डर ले लिया। एंड ठीक है नीडलेस सर से लॉन्ग टर्म में तो फिर ये बिकेगा ही ना, जब आपने एक बार शुरू करवा दिया। जी। भाई आपने इस बिजनेस की हंटिंग कर ली, बाद में तो आपको फार्मिंग करनी है सिर्फ इसकी। बिल्कुल सर। राइट, सो एक्सेल पे मतलब try to come to an Excel as fast as possible, where श्योर we are सर। talking about outlets, branch, and order rather than या strategy. श्योर। So let's do that very fast. Thank you बिल्कुल so सर। much. थैंक यू This सर, थैंक यू। one-on-one will be available on the website. ओके फाइन। ठीक है, थैंक यू। कुछ डेटा जो मैंने आपसे मांगा है वो try to give it to me, like distributors, their key डिस्ट्रीब्यूटर, branches. यस यस, आई लेट गिव इट ठीक टू है, यू। and then the people data, who are the managers there and the canvassers there. ठीक है. श्योर। All right. Thank you so much, Ashish. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स All फॉर the टाइम। best for your project. Pleasure थैंक यू वेरी speaking मच। with you. Bye bye. सेम हियर, बाय बाय।